میں ہوں نویس ستی اور اس وقت میں موجود ہوں یہاں پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا میں موجود ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب اختر بادشاہ کاکڑ جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں کوئٹہ جو چیمبر آف کامرس ہے بلوچستان، اور ان کا سب سے اہم ایجنڈا آج شامل تھا جو کمیٹی تھی۔ اس کمیٹی میں یہ آج پہلے تینوں ایجنڈے یہی تھے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو تاجر برادری ہے اس کو جو درپیش مسائل ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بارڈرز پہ بہت سے جو اب پاکستان کی طرف جو بلوچستان کا بارڈر ہے اس پر بھی، اور پھر اسی طرح جو ایران کی طرف ہے اس میں بھی کس طرح کی تجارت ہو رہی ہے، 2000 سے زائد کنٹینرز کیسے جو ہے وہاں پر پکڑے گئے ہیں یا رکے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے، پالیسی کا فقدان کہا جا رہا تھا کہ یہ پالیسی نہیں ہے، کیوں روکے گئے ہیں، کیا وجہ ہے۔ اچھا کاکڑ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آج آپ تشریف لائے، آپ نے کمیٹی کو بھی آگاہ کیا۔ ایک تو ہمارے جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کے لیے ذرا بتائیں اوورآل کہ بلوچستان میں پوٹینشیل کتنی ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں ٹوٹل آبادی کتنی ہے، نوجوان کتنے ہیں، یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان جو ہے اس کے جو نوجوان ہیں بیچارے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، یہ بھی ذرا ان کو بتائیں کہ کتنی تجارت ہو سکتی ہے، اور بلوچستان کے بارڈرز جو ہیں ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ کتنا ٹوٹل ہے، اور اس میں تجارت کس طرح کی ہو سکتی ہے۔ بہت مہربانی آپ کی اور آپ کی میڈیا کا۔ آج جو کمیٹی میں ہمارا میٹنگ ہوا تھا، بلوچستان میں ٹوٹل آبادی 1,20,00,000 ہے، اور رقبے کے لحاظ سے آدھا پاکستان ہے، 46% ہے۔ بے روزگاری کی بات جو آپ نے کیا تھا، بلوچستان میں بے روزگاری ہے نہیں، ہم نے جان بوجھ کر بے روزگاری بنایا۔ اب ایران کے ساتھ ہمارا 900 کلومیٹر بارڈر ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارا 1200 کلومیٹر بارڈر ہے۔ تو یہ اسلام آباد جو ہے کامرس منسٹری، کامرس جو کامرس سیکرٹری، یہ نہیں چاہیے۔ میں چیمبر آف کامرس کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں، ممبر ہوں۔ میں نے بار بار کہا تھا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا 1200 کلومیٹر بارڈر ہے، ہر ڈسٹرکٹ پہ ایک بارڈر ہونا چاہیے۔ ایک بارڈر 10 لاکھ سے 15 لاکھ تک، 15 سے 5 لاکھ تک لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں۔ ہمارا ٹوٹل آبادی اگر 5 لاکھ سے 10 لاکھ لوگوں کو روزگار دے ہوئے تو ہمارا سارا بلوچستان کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ بلوچستان کی بے روزگاری صرف چمن کا بارڈر ہے، وہ بھی بند کیا تھا ہم لوگوں نے، اس کو بار بار چمبر والوں نے تجویز دیا تھا، بادنی سٹارٹ ہوا تھا، یہ ماریا قاضی صاحب کامرس سیکرٹری میں اس وقت سے، پھر اس لوگوں نے بند کیا کہ روڈ نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے، وہی 5 بارڈر اسٹارٹ ہے، وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہاں پہ بارڈر مارکیٹ پہ کام ہوا تھا، آج تک اسٹارٹ نہیں ہوا تھا۔ ایک بارڈر مارکیٹ میں اس لوگوں نے $100 رکھا تھا، اگر $500 ہم رکھے، $500 کے مال بارڈر مارکیٹ میں مشترکہ بارڈر بغیر پاسپورٹ بغیر ویزے ایران کے لوگ بھی آئے گا، اور پاکستان کے لوگ وہاں پہ $500 کی مال اٹھا کر وہاں پہ پہنچ جائے گا، ہمارا سارا وہاں سے مال اٹھا کر پاکستان میں بھی۔ یہ تو ہمارا بلوچستان کا بے روزگاری خطرہ، افغانستان کے ساتھ اسی طرح ہو جائے گا۔ تو یہ بھی قسمتی سے جان بوجھ کر ہم یہ بے روزگاری کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ آج جو میجر ایشو ہم نے دیکھا کمیٹی میں بھی وہ یہ تھا کہ آپ کے 2000 سے زائد کنٹینرز جو ہیں وہاں پر تقریباً 3 ماہ سے زائد ہو گئے وہ رکے ہوئے ہیں، اس کی وجہ ہے کیا ہے، اور آج کی کمیٹی میں کیا اس کا کوئی سولوشن نکلا ہے، کوئی حل نکلا ہے؟ یہ جو 2000 کنٹینر ہمارا تفتان بارڈر پہ کڑا ہے، یہ آئی فارم جو ہے یہ لوگ ایشو نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ایران کے اوپر بیرونی وہ پابندیاں ہے۔ اس کی وجہ سے 16 اکتوبر پہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا تھا، اس میں یہ کر دیا تھا، یہ اسٹے پہ چل رہا تھا، پھر وہ اسٹے اس نے بند کیا، پھر کامرس منسٹری نے 45 ڈیز کے لیے اجازت دے دیا تھا، اجازت صرف ایرانی ریجن کے لیے۔ اس پہ تو لوگوں نے 2 مہینے پہلے، 1 مہینہ پہلا چینا کو پیسہ حوالہ کیا یا ٹیٹی کیا، ڈالر بیچ دیا تھا، وہاں سے مال پہنچ کر جو تفتان پہ پہنچ گیا تھا وہ مال اربوں روپے کا ہے، اربوں روپے کا مال اس لوگوں نے نہ یہ کہا تھا کہ آپ 1 مہینہ بعد یہ چیز نہیں لانا، اس نے اسی جگہ پہ بند کیا تھا۔ 2000 کنٹینر، ایک کنٹینر پہ ڈیلی $200 خرچات آ رہے، یہ 3 مہینے ہو رہے،
और हर कंटेनर के ऊपर 3,000 और पाकिस्तानी रुपये आ रहा है डेली। यानी उन लोगों को नुकसान हो रहा है। ये तो सारे लोगों के ये माल एक्सपायर हो रहे हैं। गवर्नमेंट जो है हमारा कॉमर्स, हम तो हिंदुस्तान के लोग नहीं है, नहीं इंडियन है, मैं पाकिस्तानी बलूचिस्तानी हूँ, मैं महबूब वतन लोग है, मगर ये भी किस्मती से आज आपने मीटिंग देख लिया था ईरानी रीजन को, वो तो भी डॉलर टेटी नहीं हुआ था, तो फिर आपने ईरानी रीजन को फिर किस तरह इजाजत दे दिया था। अच्छा, ये जो मारिया काजी साहिबा हैं, ये कितने अरसे से बैठी हैं और ये क्या कभी गई हैं वहाँ पे, कभी चैम्बर्स का दौरा किया, आप लोगों के मसाइल सुने, या ये इस्लामाबाद में बैठ के मसले हल? मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक फूल का किरदार अदा कर रहा हूँ। आज तक हमको नाम बोर्ड लिया, जो फैसला ये लोग इधर कॉमर्स कर रहे बलूचिस्तान के हवाले से, कोई न बलूचिस्तानी को से पूछा न पूछ रहे। मारिया काजी को ये पता नहीं कि चमन किधर है, बादनी किधर है, तिप्तान किधर है, इधर पैसे लेकर 7 साल से हम इसको देख रहा हूँ। रजाक दाऊद के दौर में भी ये बैठा था, दूसरा दौर में भी ये बैठा था, ये कह रहा था कि बलूचिस्तान में रोडे नहीं, बॉर्डर बादनी बॉर्डर को इसी ने बंद किया था। अच्छा काकड़ साहब, आप हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, खुद बिजनेसमैन हैं। हम तो जर्नलिस्ट को तो पता चलता है कि अरबों रुपए की करप्शन होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, कॉमर्स में। आप बताइए कितनी करप्शन होती है और ये लोग करप्शन कैसे करते हैं और इससे मुल्क को क्या नुकसान होता है? भाईजान, ये जो अपने करप्शन के लिए ये सिस्टम ये सब तबाह किया था। हम ताजर लोग जो है, हमारा ताजर, मैं आपको एक बात, बलूचिस्तान की ताजर 5,000 लोग से ज्यादा इजरत करके दुबई चला गया, बाकी लोग खैबर पख्तूनख्वा या कराची। बलूचिस्तान में अभी 25% ताजर नहीं रह गया। ये हमारा कॉमर्स, हमारा पाकिस्तान की गलत पॉलिसी की वजह से ये सिस्टम तबाह किया। कौन कौन से इदारे हैं जो सब इदारे जो ऐसे NHA वाले की पुलिस ट्रैफिक नहीं है, NHA की पुलिस ट्रैफिक, ये भी ये नहीं देख रहे कि गाड़ी के ऊपर बाजरी रेक ज्यादा अनलोड है, ज्यादा लोड है, इसके ऊपर टाट नहीं डाला था, वो गिर रहे गाड़ी के ऊपर पत्थर। ये भी इसी को देखिए, स्मगलिंग है, हम लोगों को स्मगलिंग की नजर से देख रहे। हम 100% टैक्स जमा करें, हमारा गाड़ी पंजाब नहीं पहुंच जाएगा। वो कह रहे बगैर टैक्स वाले गाड़ियां 20 लाख, हम करोड़ रुपए जमा करें, वो नहीं पहुंच रहे। अगर हम 20 लाख रुपए किसी को दे दे, वो पंजाब पहुंच जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाएगा। ये इतना यानी अगर आप टैक्स 1 करोड़ पे दें तो आपको फिर भी रोका जाता है, और अगर आप टैक्स ना दें उनको देते जाए, फिर टैक्स ना दे, वो गाड़ी पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा, आप पहुंच जाएगा। और ये अगर इसके लिए इतना बड़ा मुल्क के लिए नुकसान हो रहा है, उसके लिए खामोश हो जाते हैं, और जब टैक्स आप देते हैं, टैक्स नेट में आते हैं, उसके बाद ये रोकना शुरू कर देते हैं। रोकना क्या, कल हम आ रहे थे, टमाटर का वो कड़ा किया था, टमाटर आ रहे ईरान से, टमाटर फ्रेश आइटम है, ये तो खराब हो रहे दो तीन दिन से। उस दिन केक आ रहा था, उसने 100% टैक्स जमा किया था काठमांडू पे। पुलिस ने कड़ा किया था कि 25,000 रुपये हमको दे दो, ठीक है, उसने 25,000 नहीं दिया था। क्रेक भी फ्रेश आइटम है, उसने गाड़ी खाली किया था, फिर वापस लौट कह रहा था कि तुम्हारा गाड़ी में 5 कार्टन केक ज्यादा है, 50,000 रुपये इसको दे दो। उसने नहीं दिया था कि तुमने खाली किया था, हमको गाड़ी लौटे। उसने कस्टम को हवाले कर दिया था कि इसमें 25 कार्टन ये ज्यादा है, इसके ऊपर केस बना दिया। इतना जुल्म हमारा साथ, फलस्तीन के मुसलमानों के साथ इतना जुल्म नहीं हो रहा जो बलूचिस्तान हमारा लोगों ताजरों के साथ। हल क्या है इसका? हल आज आपने कमेटी में देखा, आपके लिए काफी सेनेटर्स जो है वो बोले हैं इस मामले पे, और उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसको भी कहा, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, आपको लग रहा है कि अब इसका हल निकलेगा या नहीं निकलेगा? हल क्या है? हल के लिए मैं 3 महीने से कोर कमांडर साहब के पास लेटर भेजा था कि हमको मुलाकात दे दे, मैं उसको बता दूंगा कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। हम दूसरे मिनिस्ट्री के साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास लेटर हमने भेजा था, हमारा मुलाकात ये नहीं हो रहे। हम किधर जोर ताकतवर इदारों के पास भेज रहे, हमारा कुछ आवाज कोई नहीं सुन रहे। एक जाम कमाल साहब को हमने कहा था, वो एक दफा आकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमसे मुलाकात किया था, उसके बावजूद हमारा काम पे कोई वो नहीं। अभी कमाल तो है ही आपका बंदा, हमारा को जानता है, अच्छा आदमी, तो आपको लग रहा है कि वो भी इस मामले को हल नहीं कर पा रहा? नहीं, और हमारा बच्चे अगवा हो रहे हैं। अभी हमारा एक मुसव्विर काकड़ है, 15 नवंबर को अगवा हुआ था, उसकी डिमांड हमने खुद उस पे, आज तक वो नहीं मिला था। तो आपको क्या लग रहा है, अब जिस तरह बता रहे हैं कि लोग मायूस होके वो चले गए, क्या मजीद खुदा, ये इस तरह है कि हम सुबह उठ जाएगा,
ये पता नहीं कैमरा तक हमारे साथ क्या हो जाएगा। अभी आप सब लोग इस्लामाबाद में आए हैं, कोई उम्मीद नजर आ रही है आज कमेटी की आज अटेंड की? कमेटी में जो ये शाजीब साहब, मंजूर काकड़ साहब, ये लोग जो है हमको, इस लोगों ने बहुत वो लिया था, एक्शन लिया था। आपने तो बड़े सख्त अल्फाज यूज किए मारिया काजी के हवाले से। मारिया काजी ने हमारे साथ इसी तरह नाजायज के, हमको एक गुलाम की नजर से भी नहीं देख रहे। हम एक ताजर हूँ, आप गए? मैं एक जिम्मेवार शख्स हूँ। मैं उसके पास गया तो उसने मुलाकात हमको इसी तरीके से डील कर रहा था कि मैं एक कुत्ता हूँ। इस तरह तो ये मुल्क, हम पाकिस्तानी नहीं हो, हमारा तो दिल दर्द कर रहा है। हमने क्या गलती किया था? हमारा बलूचिस्तान को ऐसे सुबह हमारा 75% लोग रोजगार ज़राअत है, ज़राअत हमारा तबाह हुआ था। डेमे नहीं है, पानी नीचे चला गया। जो हमारा फ्रूट का सीजन है जो ईरान से माल शुरू होता है। हल क्या है? ईरान को पाकिस्तान क्या दे सकता है और ईरान पाकिस्तान को क्या दे सकता है, और उससे आम आवाम को क्या फायदा होगा? ईरान जो है, पाकिस्तान जो है, ईरान को 2 एटम ईरान नहीं छोड़ रहे। ईरान का 5000 एटम पाकिस्तान में आ रहा है, इसका कोई मालिक नहीं। हाँ, अभी भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है। ये लवारिस सुबह है। और पाकिस्तान इस तरह लोग बैठा है जिस तरह मारिया काजी साहब हो। इसका मतलब है ईरान तो फायदा उठा रहा है, लेकिन पाकिस्तान उठा पाकिस्तान का, ईरान का मालिक है मुल्क का। ईरान का एम्बेसडर हमारा पास चंबर में आता है, बोलता है ये करो वो करो। आज तक हम चंबर वालों से किसी ने पूछा नहीं कि आप लोग क्या करें। हम लोगों ने तजवीज दिया था कि बॉर्डर मार्केट ये बनाओ, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर खोल दो, ईरान के साथ खोल दो। इधर जो पेट्रोल और डीजल का काम करे, लोग क्या करे? रोजगार उसी के ऊपर, जो रोड पे लोगों को पैसा दे रहे हैं वो उसके ऊपर थोड़ा टैक्स लग गया। अच्छा, ये जो बात हो रही है कि जनाब ईरान या अफगानिस्तान बॉर्डर पे कि डॉलर की स्मगलिंग होती है, मंशियात की स्मगलिंग होती है, बाकी असले की होती है, ये होती है, इसको कैसे खत्म किया? भाईजान ये सारा झूठ है। स्मगलिंग जो होती है, स्मगलिंग हम लोगों ने खुद अपने पैसों के लिए छोड़ा। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं। अगर एक लीवीज वाले के पास कोई चीज नहीं आ सकता है। अभी हमारा पॉलिसी देखो, अफगानिस्तान के साथ अफगान ट्रांजिट बलूचिस्तान पे बंद किया था, पाकिस्तान पे। ठीक है, वो उसने शिफ्ट कर दिया था चाबार पे, ईरान पे। वही चीज अफगानिस्तान को लेने का 100 कंटेनर का जरूरत है। अफगानिस्तान के पास 2000 कंटेनर आ रहे हैं ईरान के रास्ते पे। पाकिस्तान पे भी हमारा गाड़ियां भी चल रहा था, वो बंद किया था, टैक्स भी हम दे रहे। 1900 कंटेनर किधर जा रहे हैं? 1900 कंटेनर तो पाकिस्तान में स्मगलिंग हो रहे हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने बताया था कि आप टैक्स कम करो, जो अफगानिस्तान टैक्स लेते हैं आप टैक्स उसी हिसाब से ले लो कि ये कराची पोर्ट पे ये शुरू हो जाएगा हमारा खजाने कितना में। नुकसान पर डे हो रहा है, पर मंथ कितना वो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, और कितना बंदा रोजगार हासिल कर सकता है इस? अगर बलूचिस्तान की पॉलिसी बॉर्डरों रिस पे, तो हमारा बलूचिस्तान में बेरोजगार बंदा नहीं रहेगा। सही, क्योंकि बलूचिस्तान में कारखाने नहीं है, बैंक पैसा नहीं दे रहे हैं। बैंक रेड जोन डिक्लेयर किया था। ठीक है, पूरा बलूचिस्तान में जरूरत से लेकर पूरा बलूचिस्तान में बैंक का इतना पैसा पूरा बलूचिस्तान को नहीं मिला जिस तरह या खैबर पख्तूनख्वा में एक पिक्चर को मिला, या फैसलाबाद में, या कराची में। पूरा बलूचिस्तान को कोई एक ट्रक, एक गाड़ी अपनी निकाल सकता है। ये कह रहा था, ये हमको सब लोग स्मगलरों और चोर की नजर से। एक तरफ ग्वादर है, ग्वादर की भी बताया गया कि उसमें बहुत से रोजगार के मौके पैदा होंगे, और दूसरा ये कितना, यानी मैं पोटेंशियल कितनी है, यानी कितना डेली का नुकसान हो रहा है अगर आप अभी जो बंद है? अरबों रुपए का, मतलब कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है? नहीं, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है क्या? और अगर इसको मैनेज किया अगर जाए हमारा ग्वादर कब से बंद है? ग्वादर को स्टार्ट करो। कराची के ऊपर लोड ज्यादा है, ग्वादर को आधा चीजों को दरमियान करो, ग्वादर पे स्टार्ट, लोगों को रोजगार दे दो। ग्वादर क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? ग्वादर हम तो भी है, पता नहीं ग्वादर क्यों स्टार्ट। हम लोगों ने उसको एक दफा एक गंदम का 2 जहाज आया था, फिर उसके पास जो गाड़ी, हमने बोला चावल है कराची पे बैंड करो, ग्वादर पे स्टार्ट करो। जिस तरह चेन्नई में बहुत पोडू में एक चीज बैंड है कि इधर नहीं, इधर से स्टार्ट करो। ग्वादर नहीं स्टार्ट करे तो मुल्क की पॉलिसी हमको मालूम नहीं है। मैं तो अपने मुल्क, ये तो बहुत अच्छा मुल्क है, मगर बेकिस्मती से। आपकी मुलाकातें होगी और उम्मीद रखते हैं कि कुछ मसला इंशाल्लाह खुदा। थैंक यू जी। ये सूरत थी आज कमेटी में, क्योंकि काकड़ साहब मौजूद थे, और जैसा कि बताया गया इन्होंने कि 1200 जो यानी किलोमीटर है वो ईरान के, अफगानिस्तान के साथ है, 900 ईरान के बाद बॉर्डर है, और बाकी ममालिक की फ़ायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान फ़ायदा नहीं उठा रहा। बकौल इनके ये कह रहे हैं जी कि 25,000 के करीब जो ताजर थे वो ऑलरेडी जो है वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। मज़ीद बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म हो सकती है अगर सिर्फ बॉर्डर की पॉलिसी को बेहतर तरीके से किया जाए। और मारिया काजी के हवाले से मुबैन तौर पर इनके इल्ज़ामात मौजूद हैं कि वो गुज़िश्ता 7 बरसों से बैठी हुई हैं। वो वहाँ इस्लामाबाद में बैठ कर जो है वो ईरान की या ईरान पाकिस्तान बॉर्डर की जो पॉलिसी बनेगी
تو ظاہر ہے اس میں پھر مسئلہ رہے گا. یہ ابھی تک کی صورتحال تھی، ابھی تک اتنا ہی.